welcome to our special broadcast on NDTV 24/7. My name is Kitty Behel and today we are being joined by the star cast of TVS series Kota Factory with us on the broadcast, one of the most loved and watched shows on Netflix. The season 3 of Kota Factory has also just dropped in and it's believed to be as exciting and full of hope as the last 2 seasons have been. We have with us on the broadcast Jitendra Kumar, also known as Jeetu Bhaiya on this show. Thank you so much, Jitendra, for being with us here. Thank you. We have Mayur More, who's played the character of a 17-year-old student, Vaibhav, in Kota Factory. Thank you so much for being with us. And also Tilotma Shom, who's already a well-known star. And, you've starred in movies like Monsoon Wedding, Sir. I mean, personally, I've really loved both the movies and many more characters that you've played. And you're making an entry in season 3 of Kota Factory. Thank you so much. All right, so we also have a live audience with us on the broadcast here. There are students from various engineering colleges from Delhi, as well as students who studied in Kota coaching institutes as well, joining us on the broadcast here. They also will get a chance to ask questions to the star cast here. Thank you so much for being with us here on the show. Thank you so much. All right, Jitendra, if I could start with you. You're fondly known as Jeetu Bhaiya on the show. And that's how maybe, everybody likes to call you these days as well, I believe. Tell us a little about your journey as Jeetu Bhaiya, this character that you've played in the 2 seasons before and the new season, of course, that has just dropped in. How has your journey been and do you somehow relate to the character? जर्नी अगर बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है. आज 2018 में हम लोगों ने शूट करना स्टार्ट किया था एंड इट्स वी आर सिटिंग इन 2024. जो कैरेक्टर है वो बहुत ही फिक्शनल था. मैंने पढ़ाया भी है और मैं उस कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ जहाँ पे मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं. बट जीतू भैया का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी डिफरेंट है. जो मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने बोला कि ऐसे टीचर्स तो होते नहीं है. तो ये किस तरह का बनाया. देन आई थिंक वो पूरा राइटर्स की रिसर्च है कि इस तरह का हम लोग बनाएंगे. एंड मेंटोरशिप जो बीच में जो गैप है स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स नॉट रियल बट it's relatable through the kids, the students, but this character will be like little fictional. So बड़ा इंटरेस्टिंग रहा उस फिक्शनल कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना, क्योंकि कहीं से भी मैं ऐसे टीचर को जानता नहीं हूँ फ्रॉम कोटा. सो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही अगर हम कैरेक्टर की बात करें. एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं कोटा फैक्ट्री देखता हूँ मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ. So how do we see your character evolving in the new season? क्या देखने को मिल रहा है? अभी शो था आपका आ गया है ऑलरेडी और मुझे लगता है जैसे ही ड्रॉप इन हुआ है कई लोगों ने देख भी लिया है अभी तक, पर कैसे आपका कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है इसमें? आई थिंक और जो टीचर्स जो फेस करते हैं इन जनरल, तो उन डेप्थ में हम इस बार गए हैं और उस तरह से कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है इस सीजन में. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी अगेन जिस तरह की जीतू भैया की जो बातें हैं जो लोगों को पसंद आती हैं या स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं या मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, उस तरह की बातें कंटिन्यू रहेंगी. बट ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर है उसको उस पर और प्रोग्रेस हुई है इस बार. एंड नॉट ओनली माई कैरेक्टर बट बाकी सारे कैरेक्टर्स की भी हम लोग डेप्थ में गए हैं. बिल्कुल. ऑलराइट, सो यू हैव बीन एन IIT ग्रेजुएट एंड you yourself have been through all this hardship or the stress or the pressure that the students go through while studying in engineering colleges. और इस बार जो है आप टीचर के रूप में आए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट की तरीके से नहीं आए. इस बारे में मैं बात करूंगी, आपकी रियल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करूंगी. लेट मी गो टू मयूर हियर. मयूर, you're playing a character of a 17-year-old here, Vaibhav, who's a student studying in one of the coaching institutes in Kota. Tell us a bit about your character. How do you find your character? Do you relate to it? And how has your journey been in all these 3 seasons? The journey so far has been very good, and I've learnt a lot of things. If I talk about Vaibhav, there are a lot of things which are really similar in my life, especially the admission process, because I was also struggling when I wanted to take admission in 11th and 12th. So I was also on the same situation. I was the last student in my college and everybody was sitting in the uniform and I was the only one who was जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं था. तो वो जब मैंने पहला सीन पढ़ा तो मुझे फटाक से मेरी पहली चीज वही चीज याद आ गई कि यार ऐसा सेम मेरे साथ हुआ है. दो वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था पर जो एडमिशन प्रोसेस था, और स्टूडेंट तो ऑब्वियसली सभी रहे हैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं. तो शो के थ्रू भी लाइक वी वांटेड टू से दिस थिंग्स कि
कितना ज्यादा लोग रिलेट कर पाए। और जैसे कि हमने वो ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है, तो वो राघव का ये कहना भी था कि अगर आज से कोई 25 साल बाद भी शो देखना चाहता हो, तो वो जब देखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आएगी कि वो दिस वाज द एग्जैक्टली सेम थिंग जो Yeah, that is what I actually was wondering about कि black and white जो ये आपने background दिया है, is it to give more depth to the show? it has a lot of theories, and the good thing is that like audience has a lot of theories about it. Like Right. I'm sure when we were shooting, there were two monitors. One was the color one and one was the black and white one. But everybody used to come and watch the black and white one because Okay. like हम लोग को लग रहा था कि यार ये कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत अच्छी लग रही है, और जिस तरह का तो ये आपका सबका मिला जुला रिस्पॉन्स था, यानी कि हाँ, आपका पर- फीडबैक लिया, आपका भी फीडबैक लिया गया था कि ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहिए इसे। हाँ ऑफ कोर्स इनिशियली ही मीटिंग हो गई थी कि ये हम लोग को, क्योंकि डायरेक्टर का पूरा कन्विक्शन था, जो राघव सुब्बू हैं जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 डायरेक्ट किया, इस शो के वो क्रिएटर हैं, तो उन्हीं का ही आइडिया था कि ये स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छी लगेगी, एंड कुछ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कोटा का ब्लैक एंड व्हाइट में, बिकॉज दैट ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट चॉक राइटिंग, सो वो काफी वहां से थॉट चालू हुआ, एंड उसके बहुत सारे एस्पेक्ट उनके दिमाग में है, तो वो बहुत कन्विंस थे कि ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। एंड तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि विल हैव 2 मॉनिटर्स, एंड वो हम लोग कलर में भी शूट करेंगे एंड उसको बाद में ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। तो व्हेन यू सी बोथ ऑफ देम यू विल गो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। सो बाद वो आई थिंक पहले दूसरे दिन ही बहुत क्लियर हो गया था कि वी आर गोइंग टू शो इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। All right. Tilotma, if I could come to you here, tell us a bit about your character. You're playing the role of Pooja ma'am, and not ma'am, Pooja Didi, I believe. Yes, Yeah. yes. So tell us a bit about your character. How do you feel about starring in Kota Factory? You've already done a lot of movies, shows before, but how what kind of exclusivity does Kota Factory provide to you? Exclusivity. I don't know. I'm not looking for any exclusivity. In fact, I'm looking for inclusivity. I'm very happy to be included in the Yes. world of Kota, because the show for me represents a very, very significant, a very significant issue, which is the potential and the tremendous potential and strength that the youth of India represent. And I feel our storytelling has never included them before. In a manner in which they are the protagonists, and they are in the center of it all. And I really wonder why. And so for me, when I saw Kota Factory, I realized that, my God, this was a vacuum that needed to be filled. And like how fools rush for gold, Right. there's a sense of, like, when the show came out, why did people clamor for it? Why did it have such a response? It's because India has the largest youth population, and we are not telling their stories. These are issues that are rarely taken up and made into movies or shows. Yeah, And as maybe storytellers. that's the reason that people are, and students mostly, are able to relate to it. think Even so. teachers, even parents who are watching the show, I believe. I think so. I think it was a demographic, a very large one, that was ignored because we are very ageist, and we think they're just young people. And we are very proud to say India has the highest youth population, but we don't want to make space for them, So it's like you want to have it both ways, So I think what Kota Factory did was so significant in making young people feel seen, heard, and a story about them, their life, their crisis. Right. That being a part of a show like that, especially at a time when you hear your news feed is also bombarded with information about young lives, Yes. Not being able to take the pressure, then as an artist you often feel handcuffed, Right. because you have chosen to speak through your work. And so when an opportunity like this comes, where fiction is actually helping you look at facts in a way that hasn't been looked before, I was very delighted. Okay, and tell us a little about your character also. My How do character, we- Pooja yeah. Didi, teaches chemistry. She loves chemistry. Yeah. Her dad wants her to teach in Kota. She doesn't want to, because she feels Kota has become a factory. But then And- despite that, you go to Kota and you teach there.
Well, Jitu Bhaiya needed her for a bit, so. So, okay. So mental health is one topic that is something that of course we all need to talk about. और ये जो topic है आपके show में काफी touch किया गया है. Season 3 में we do believe that more emphasis is laid upon that as well. ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ दोनों साइड ही इफेक्ट होता है. वंस एक टीचर है जो इतना कनेक्टेड है स्टूडेंट से, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑफ कोर्स फैमिली पे आएगा एंड देन टीचर पे आएगा. आप भी थेरेपी लेते हैं? हाँ, सो उसमें जो जीतू भैया का कैरेक्टर है वो थेरेपी लेता है उस सीजन 3 में. तो किस तरह की बातें होती हैं और किस तरीके से हमने मेंटल हेल्थ पे बात करने की कोशिश की है वो आपको सीजन 3 तो फर्स्ट सीजन में आपने इसको लिमिटेड रखा, आपने इसको एज फुल ऑफ होप रखा स्टूडेंट्स के लिए. एक नया स्टूडेंट आता है, किस तरह से वो हार्डशिप से जाता है, जीतू भैया उसको किस तरह से हेल्प करते हैं. सो आफ्टर सीजन 2 एंड सीजन 3 दैट यू आर टचिंग डाउन अपॉन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट ऑफ कोर्स नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट. मयूर, आपको कैसा लगा जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इस शो के लिए? एज ए यंगस्टर ऑफ कोर्स आपने अपना अनुभव तो शेयर किया है कि किस तरह से आप स्टूडेंट लाइफ में, किस तरह से आपने जब एडमिशन ले रहे थे तब हाउ व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू, और किस तरह से अभी रिलेट कर पा रहे हैं. पर अभी जिस तरह से प्रिपरेशन जब हो रही थी शो के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज जब मैं पहली बार अपने डायरेक्टर से मिला, राघव से, सो व्हेन आई मेट हिम I got to know कि we are creating something very special and very unique, and he was so into it. Then जैसे प्रोसेस शुरू हुआ, obviously मैं जीतू भाई से मिला, रंजन को मैं पहले से जानता था, एहसास को मैं देख चुका था बहुत बार, कभी काम नहीं किया था उसके साथ, पर मैं जानता था कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और हम लोग कुछ इसका पता नहीं कि होना क्या है, पर प्रोसेस में बहुत मजा आने वाला है. बहुत ज्यादा मजा आया भी. और क्योंकि सीजन 1 में हमारे पास टेक्निकली वी वांटेड टू बी स्ट्रांग, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम लाइंस जो है वो करके आए, कोशिश करें सेट पे जितना हम टेक्निकली लोगों को सपोर्ट कर पाए. जैसे डीओपी को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था लाइट्स करने के लिए, और कोटा में हमने कोशिश की कि वी आर शूटिंग ऑन अ रियल लोकेशंस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर ट्राइंग कि जब स्टूडेंट्स नहीं है तब हम शूट करें, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि there must be a lot of crowd, lot of students I'm sure who would want to be seen in the audience maybe. एंड सीजन 1 में फिर भी उनको पता नहीं चल रहा था व्हाट इज द शो और कहाँ पे आना है, बट आफ्टर सीजन 1 एवरीबॉडी गॉट टू नो. सो व्हेन वी वेंट फॉर सीजन 2 तो वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, तो आधी एनर्जी सिर्फ भीड़ को हटाने में लग जाती थी. सो वी यूज्ड टू डू हमारे पास 2 कैमरास थे, तो एक जगह पे एक्चुअल शूट हो रहा होता, दूसरी जगह पे हम जानबूझ के कैमरा लगाते थे ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि वहां पे भी शूटिंग हो रही है. Okay, so you had to install fake cameras basically. बिकॉज इट वाज ऑन अ सिंक साउंड, सो जो भी बाहर आवाजें हो रही है वो सब कैप्चर हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे. तो हमको कुछ करना पड़ा, तो ये प्रोडक्शन का कॉल था कि एक कैमरा ऐसा लगाया जाए जिसपे हम ऑडियंस को इस तरफ बुला के फिर हम शूट कर ले. राइट. चलिए, that's a very innovative mean I would say actually. All right, let me also get the audience involved here. Anybody from the audience who would want to ask a question to their favorite stars here? You maybe can we pass on the mic there? My name is Nirnay and मेरे को यही क्वेश्चन जीतू भैया से पूछना था. दैट आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन इज कि वी कैन इंक्लूड वैभव एज वेल, कि फ्रॉम द स्टोरी दैट वैभव एंड वर्तिका हैव वेरी ऑफ केमिस्ट्री, उनमें बहुत बढ़िया केमिस्ट्री है, एंड वैभव की स्टडी में भी केमिस्ट्री काफ़ी खराब है. सो हाउ टू बैलेंस दिस थिंग, स्टडीज एंड पर्सनल लाइफ, अलॉन्ग दैट यू आर कोचिंग for a very competitive exam that is NEET, like I am coaching for one of them. अरे आप भी Anyone मेरे को तो जीतू भैया ने गाइड किया था कि कैसी केमिस्ट्री होनी चाहिए. सो आई वाज सॉर्टेड एट जीतू भैया इन माय लाइफ. कहीं पे मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी डाउन जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं इनका दरवाजा खटखटाता हूँ. आई थिंक इन द शो जीतू भैया का जो कैरेक्टर है, जो टीचर है, वो बार बार ऐसी चीजों पे भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि लाइक मम्मी को बुला ले, मम्मी से बात कर ले, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में कुछ बोलते हैं. तो आई थिंक एज जीतू भैया वो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके उनका काम होगा, प्लस साथ में उनकी फैमिली होगी, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना अभी से वो सीखना चालू कर दें. सारा फोकस, ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम पढ़ाई करते हैं या हमें सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए और हमें क्लास में उतना ध्यान देना चाहिए, बट बाकी चीजें भी आई थिंक ज्यादा मैटर करती हैं. जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, दोस्ती है, प्यार है, गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है, फैमिली है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. तो वो बैलेंस आउट करना वो तभी से आई थिंक इंटेंड कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने काफी फिक्शनल कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जीतू भैया को, और ऐसी चीजें जो मिसिंग है
जनरली टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वो हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आई होप कि अगर जो आज के जनरेशन में जो टीचर्स हैं और जो अपने एल्डर्स हैं वो इंस्पायर हो इस शो से, और वो बचपन से ही उनको बैलेंस आउट करने का सिखाएं बच्चों ऐसा लग रहा है जितेंद्र, आपकी जितनी ट्रेनिंग हो गई है कोटा फैक्ट्री में, आप तो रियल लाइफ टीचर के तरीके से आप आंसर कर रहे हैं. एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू यू एंड वांट टू गेट रियल लाइफ, गेट द रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हियर. ऑलराइट, हां जी Sir, I would like to mention one thing as well. I have got my real life Jitu Bhaiya as well. That is Venkatesh sir. He teaches me zoology. He is Oh, standing hi. at that spot only. ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे कि कोचिंग सेंटर्स रह गए हैं, ये जैसे कोटा फैक्ट्री लेके चलते हैं, ये एट द एंड एक बिजनेस नहीं रह गया एक टाइम पे, क्योंकि साथ में जैसा आप बताते हो कि एजुकेशन को एक प्रोसेस में लेके चलो बस, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक आउटकम आना ज़रूरी है. क्यों एट द एंड मतलब कि आप कुछ भी काम प्रोडक्टिव कर रहे हो तो एक आउटकम ज़रूरी है उसमें, कि आप वो आउटकम की वजह से आपकी एक अर्ली सक्सेस होती है और एक लेट होती है, तो उसमें आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है साथ साथ. तो उस चीज़ में हम कैसे लेके चले, मतलब कि लोग अपनी लाइन ऑफ प्लान चेंज कर देते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या वो सही है? या फिर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो 4 साल 5 साल का ड्रॉप ले रहे हैं चीज़ों को ले मैनेज करने के लिए, पर उतना टाइम वर्थ इट करता है वो? गुड क्वेश्चन यार. बेसिकली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है ऐसी चीजें, और ओवरऑल मतलब जब अगर हम अब हर किसी की लाइफ के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन पे आ जाता है, और कंपटीशन मींस मतलब कि वो कितना नंबर्स कितने आ रहे हैं किसी भी फील्ड में, नॉट इवन ओनली कोचिंग की बात नहीं है, कि अगर तुम किसी दूसरे फील्ड में भी जाओगे तो वहां भी वो नंबर मैटर करता है. हम इस सोसाइटी का पार्ट हैं, और इसमें हम बस अपनी लाइफस्टाइल में बेटरमेंट कर सकते हैं. हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम एजुकेशन को सिर्फ नॉलेज के लिए रखें, और अपने जो जिसमें हमें इंटरेस्ट है उस पर स्किल डेवलप करके उसमें ट्राई करें कि उसको प्रोफेशन बनाएं या करियर बनाएं, तो शायद बेटर बैलेंस हो पाएगा, रादर कि हम सिर्फ पढ़ाई को यूज करें कि हम पढ़ाई अगर हमने ऐसी कर ली या हमारा कहीं सिलेक्शन हो गया तो हमें इतने नंबर्स आएंगे या इतने पैसे मिलेंगे. तो वो कमर्शियल एक्सपेक्ट हर जगह है, एंड धीरे धीरे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. बट नंबर्स में बुराई नहीं है अगर कोई तुम अपना इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, जो तुमने सोचा है उस पर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कमर्शियल जैसे आप बोलते कोई हैं बुराई नहीं है. जीत ही तैयारी, तैयारी ही जीत है, तैयारी ही जीत है. If I'm saying it right. कहीं ना कहीं तुम जब वो प्रोसेस या तैयारी को एंजॉय करने लगते हो और उससे नंबर आ रहा है, और ऑफ कोर्स आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. एंड बट जो सिर्फ अगर हम जो कई बार सिर्फ एजुकेशन को ब्लेम कर देते हैं या एजुकेशन सेंटर्स को या इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम कर देते हैं कई बार कि हाँ इनका काम सिर्फ पैसे कमाना है या बहुत कमर्शियल हो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है, क्योंकि वो लाइफ के किसी भी फील्ड में नंबर मैटर करता है. हम उस सोसाइटी का पार्ट है. ऑफ कोर्स थोड़ी सी अप्रोच हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंड यू आर द यूथ, एंड तुम लोग सबसे ज्यादा मैटर करते हो और तुम लोग ही वो चेंज कर सकते हो. तो मैं यही बोलना चाहूँगा. That's a very interesting answer. Thank you so much. Tilotma, are you also going to be solving the students' problems as in real life problems as well in season 3? Jitu Bhaiya does that very well. Pooja Didi is... Everybody is now, I think, looking up to Pooja Didi as well now. She's just beginning to, she's really here to, because of her father, and she's here to support Jitu Bhaiya, who is beloved by all. And so she's here very much as a supporting presence, and Okay. we'll see where that goes. Okay. तो जितेंद्र, आपके बारे में मैंने पढ़ा, आप IIT ग्रेजुएट रहे हैं, पर ये जो एक्टिंग में आपका जो स्विच रहा है, इसके बारे में लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट. कैसे रहा ये, और कुछ पेरेंट्स ने भी अपोज किया इसको लेकर? आई थिंक कॉलेज से पहले कभी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिंग कभी की नहीं लाइफ में. तो पहली बार जब मैं कॉलेज गया तो IIT में तुम जाते हो तो वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. तो वो जब क्योंकि उससे पहले सिर्फ पढ़ाई करते हो, सडनली तुम्हें लगता है कि अच्छा स्टेज भी कोई चीज है, थिएटर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी खेले जा सकते हैं और इस लेवल पे खेले जा सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप मिलता है IITs में. तो उसने जब मैंने पहली बार स्टेज देखा तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, एंड समहाउ मेरा सारा अटेंशन, सारी मेहनत, सारा ध्यान उस पर ही चला गया, और मैं काफी पढ़ाई से दूर हो गया इन माय कॉलेज डेज. तो एंड वहाँ पे मुझे बहुत से दोस्त मिले. तो वहाँ पे एक सीनियर थे जो दोस्त बन गए, वो आई थिंक बहुत पॉपुलर
एंड बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, जिन्होंने पिक्चर्स लिखा है, जिन्होंने जादूगर लिखी है, काला पानी Right. लिखा है. सो ही इज माय सीनियर एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए कोई अपने एक सीनियर हैं, अपने IIT खड़गपुर के सीनियर है अरुणाभ कुमार, उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है TVF नाम का, तो मैं वहां पे लिखूंगा, तुम एक्टिंग कर लेना. तो उस तरह का उनसे सजेशन आया. मैं बहुत रिलेक्टेंट था कि मुझे ये प्रोफेशनली करना है या नहीं करना है, ये जस्ट अ हॉबी है या इसको एज इंटरेस्ट परस्यू करना है. तो मैं बहुत कंफ्यूज था. बट समहाउ मेरी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा सारा रुझान एक्टिंग की तरफ चला गया था कॉलेज में, एंड मैं पढ़ाई थोड़ी पीछे छूट गई थी, तो मुझे मेरी उस वजह से जॉब नहीं लगी. एंड मुझे आई थिंक आई एम द वन ऑफ द स्टूडेंट जिनकी IIT में जाके प्लेसमेंट नहीं हुई. Right. तो मैं काफी कंफ्यूज था, एंड उस टाइम पे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई जिसको मैंने दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया. Yeah. एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने पहले दिन मेरा मुंबई का पहला दिन था, उस दिन मैंने शूट किया. मतलब उस दिन मैंने अपना पहला शूट wow. किया, which is very rare. Yeah. As we all of you know कि कितना कितना hardship hard and होता है वो पहला struggle that people have to go through when they go to Mumbai, of course. So I feel lucky कि मैं डिजिटल एरा में पैदा हुआ हूँ और पहले दिन ही मैंने एक्टिंग की Right. मुंबई आके, तो Absolutely. it's a great thing. Okay, all right. Anybody else who wants to ask a question? Hi Bhaiya, Hi. I am Arya. I am a JEE aspirant. Okay, I just want to ask just a simple question. कि being a JEE aspirant, there are so many things which are moving around in our mind. One of them is कि अगर हमने अपनी पूरी efforts डाले एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और if we unfortunately we can't did it, हमारे पास तो उतने अटेम्प्ट्स भी नहीं है कि हम 3-4 साल ऐसे ड्रॉप ले लें. तो हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चन कि इतने एक्सपेक्टेशन के साथ पेरेंट्स के हम यहाँ पे आए और हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से डील करें कि क्या जवाब दे सबको कि हाँ क्यों नहीं हुआ. आई फील कोई भी किसी को भी कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, और तुम इस बात का जवाब देने के लिए नहीं हो. तुम अपनी पढ़ाई करने के लिए हो, और तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ या मेरा क्यों हो गया. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये. एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अप्रोच में मुझे लगता है कि चेंज अगर कर पाए तो वो बेटर है कि हमें सिर्फ पढ़ाई इसलिए समझनी है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए. ठीक है, अगर हम किसी चीज को परस्यू कर रहे हैं, अगर हमने IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्लास में जो चल रहा है हम कोशिश करें कि वो हमें समझ में आए. बाकी चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है, क्योंकि ये जो अगर हम फ्यूचर में जाके देखें तो एक नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत सारे लोग अपीयर कर रहे हैं, तो और उनमें से कुछ लोगों का होगा. जिन लोगों का नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है या उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. मेहनत छोड़ो, कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट सब समझ में आता है, बट एक जो 3 घंटे का एग्जाम है उसको उस रेस में हम किस तरीके से वो रेस हमारे सामने आई और हमने वो सिचुएशन कैसे फेस की, उसका हम वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो हमारे हाथ में नहीं है, और उसका जवाब स्टूडेंट्स को नहीं देना होता है. तुम्हारा सिर्फ काम है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, और नहीं समझ आ रहा है तो तुम एक हद तक ही कोशिश कर पाओगे, क्योंकि हम सबके ब्रेन्स बहुत अलग तरीके से बने हुए हैं. हमारे सबके इंटरेस्ट आगे जाके इन लाइफ अलग होने वाले हैं, आज नहीं तो कल. मतलब जब तुम कॉलेज में जाओगे हो सकता है कि तब तुम्हें पता चलेगी ओ मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स है ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग है ही जैसे आपको पता चला आपका इंटरेस्ट IIT नहीं था, एंड आपका इंटरेस्ट एक्टिंग था. That, like you said, you've been really lucky that you got to work on the very first day that you landed in Mumbai. Of course, सबको ये चांस नहीं मिलता है. Yes, and I want to add one thing. I think जब हम इस तरह के, मैं स्टूडेंट था और मैं बहुत कंफ्यूज था कि अब फाइनल एग्जाम आने वाला है, एंड 2 साल की तैयारी है, पेरेंट्स का प्रेशर है. आई कुड सी कि पेरेंट्स की मेहनत ज्यादा है, उन्होंने फीस दी है और बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं. देन मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने एक स्पेशल लेक्चर रखा 7 दिन पहले एग्जाम के, और उन्होंने बोर्ड पे कुछ 100 नाम लिखे, और वो 100 नाम बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटीज की थे, जिन्होंने प्लैनेट के लिए या कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है. ऐसे लोगों के नाम उन्होंने लिखे, एंड उन्होंने सबसे पूछा कि तुम ये सारे नाम देख पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो. सबने बोला कि हाँ ये बड़े नाम हैं और हम जानते हैं, हम इनसे मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर होते हैं. देन ही सेड कि इनमें से एक भी बंदा IIT से नहीं है. सो दैट इंस्पायर्ड अस कि अच्छा एग्जाम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. लाइफ बहुत बड़ी चीज है और तुम हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज ह्यूमन बींग, सो वो हमेशा ध्यान में रखना है.
पढ़ाई बहुत ही ये एक एस्पेक्ट है लाइफ का, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब हमारा उससे सिर्फ एम इतना है कि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए ताकि हम जब भी आगे बढ़े लाइफ में तो वो हमारी लाइफस्टाइल बेटर करने में एक हेल्प करे। उससे हमें कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको किसी और चीज से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह है, बाकी चीजें अपनी जगह। Yes, absolutely. That's a very good life lesson that Jeetu Bhaiya has given to the students who are present here. Thank you so much, Jitendra, for taking out the time and being with us here on the broadcast. Thank you so much. Thank you, Tilotma, for coming to the show. Thank you, Mayur. All the best for your new series and for your new season. And we hope we get to see Kota Factory Season 4 also very soon. Thank you so much for coming here. Thank you to all.